اختلاف رہتا ہے، کوئی نہ کوئی فتنہ فساد قضیہ لڑائی جھگڑا لگا رہتا ہے۔ کبھی دو بھائی اگر ایک ساتھ ہے تو دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، دو بھائی ہے میل محبت سے رہتے ہیں لیکن دونوں کی بیوی الگ الگ علاقے سے آئی، دونوں کا مزاج الگ الگ ہے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، اور عورتوں میں لیڈیز میں مہیلا میں اختلاف لگ جاتا ہے، اور وہی اختلاف پھر آگن بن کر اور گھر میں آہستہ 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 خاندان میں وہ اختلاف پھیل جاتا ہے۔ تو بزرگوں نے بیان کیا کہ اگر کوئی فجر کی 2 رکعت گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے، گھر میں پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ اس کی برکت سے فیملی میٹر کا جو اختلاف فتنہ فساد ہے اللہ اس کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو فائدہ یہ ہے کہ ہر کوئی بزنس کو لے کر پریشان، کاروبار کو لے کر، ویبسا کو لے کر پریشان۔ حضور کاروبار بڑا اچھا چلتا تھا، جب سے فلاں سرکار آئی ہے گورنمنٹ میں، کبھی یہ جی ایس ٹی، کبھی یہ کاغذ، کبھی وہ کرو، کبھی یہ کرو، بالکل ہم لوگ پریشان ہو گئے، ہماری تجارت، ہمارا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے تجارت کریں گے، کیسے بزنس کریں گے، اپنا پیٹ کیسے پالیں گے، بیوی بچوں کا خرچہ کہاں سے لائیں گے۔ بزرگوں نے بیان کیا فجر کی 2 رکعت سنت اگر گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرو گے تو دوسرا فائدہ یہ ملے گا کہ انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا، مایا احسان فرمائے گا، اور کھانے پینے کا اوبھاو دور کر کے کاروبار میں، مال میں، دولت میں اللہ برکت پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ، تیسرا لابھ بزرگوں نے بیان کیا کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اے اللہ زندگی میں نہ جانے کتنا عمل کیا، کتنی نماز پڑھی، کتنا روزہ رکھا، آپ نے کتنا قبول کیا اور کتنا قبول نہیں کیا، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، بالکل ہمیں اس کا علم نہیں، معلوم نہیں، لیکن اے اللہ ایک کرم، ایک احسان ضرور کیجئے گا، اور وہ احسان یہ ہے اے اللہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب کیجئے گا۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ نصیب کرے۔ حاجی صاحب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، دعا کیجئے، زندگی تو دکھ سکھ سے گزر جائے گی لیکن مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یہ دعا کر دیجئے گا، یہ دعا کر دیجئے گا۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھے گا، گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کی برکت سے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی موت سے پہلے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھتے ہوئے اگر اس کی موت آ جائے تو میں نے نہیں کہا، آسام کے کسی بزرگ نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی عام آدمی نے نہیں کہا، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے اگر کلمہ نصیب ہو جاتا ہے تو وہ آدمی سیدھا جنت جائے گا، وہ سیدھا جنت جائے گا۔ اچھا یہاں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے، یہ کام کرنے سے موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، لیکن ایک کام ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی وہ کام کرتا ہے، وہ پاپ کرتا ہے، تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ دونوں بات سامنے آنا چاہیے، فائدے والی بات بھی ہو، نقصان والی بھی بات ہو۔ فائدے والی بات ہے ہم اس پر عمل کریں گے، نقصان والی بات ہوگی تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تبلیغ کس کا نام ہے؟ 2 ہی چیز کا نام تبلیغ ہے، 6 باتیں، 10 باتیں، 20 باتیں، 5 کام، 3 دن، چلہ 10 دن، وہ سب اپنی جگہ پر، لیکن تبلیغ کا خلاصہ 2 بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔
अच्छा काम करो, अच्छा काम करने का लोगों को हुक्म दो, लोगों को अच्छे काम की दावत दो, बुरे काम से खुद भी बचो और बुरे काम से दूसरों को भी बचने की दावत दो। तो मैंने एक अमल बतलाया जो अमल करने से मौत के वक्त कलमा नसीब होता है। एक अमल और बतला देता हूं कि अगर कोई वो अमल करेगा तो बुजुर्गों ने बयान किया, अपना तजर्बा लिखा कि उसको मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। वो अमल क्या है? एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े, अपने जमाने के अगर कहा जाए सबसे बड़े वली तो ये गलत नहीं होगा, फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह। फुज़ैल इब्ने अयाज रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने बयान किया कि मेरे पास एक नौजवान लड़का आता जाता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मेरी अकीदत उसके दिल में थी, मेरी मजलिस में आता जाता था, मेरी बात सुनता था, मुझसे दोस्ती रखता था, लेकिन चुपके चुपके वो एक पाप का गुनाह का काम भी करता था और वो उस बड़े पाप में लिप्त था, लेकिन मुझे पता नहीं चल सका कि ये इतना बड़ा पाप का काम करता है और करते ही रहता है। उस पाप का नुकसान ये हुआ कि जवानी में उसकी मौत का टाइम आ गया। अल्लाह ने मौत जवानी में लिख दिया था, जवानी ही में मौत का वक्त और समय आ गया। मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, मौत का समय एक बारे निकट, बिल्कुल करीब। उसके माँ बाप ने मुझको बुलाया, खबर दिया, मैं गया और जाकर मैं देखा इसका आखिरी वक्त है, आखिरी समय है, सकरात का आलम है बिल्कुल। तो मैंने वहां जाकर कलमे की तलकीन की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मरने वाले के पास जब आदमी जाए तो ये कलमा पढ़े, सब लोग जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी जाता है। हजरत ने कहा कि मैंने कलमे की तलकीन की, बार बार मैंने कलमा पढ़ा, लेकिन उस बच्चे को, नौजुवक को कलमा पढ़ते हुए मैंने महसूस नहीं किया। मैं नहीं जान सका कि इसने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा। खैर वो मर गया, उसकी मौत हो गई। 2-3 दिन के बाद ख्वाब में, सपना में उस लड़के को देखा, उस लड़के को देखा, नऊज़ बिल्लाह, वो लड़का जहन्नम में जल रहा था, जहन्नम के आगुन में था, कब्र के अंदर, अजाब के अंदर मुब्तला। हजरत ने उस लड़के से कहा कि बेटा, तुमको तो मुझसे बड़ी मोहब्बत थी, मेरी मजलिस में आते थे और बड़ी अकीदत थी तुम्हारे दिल में मेरी, ये तुम्हारा हाल कैसे हो गया? उसने, उस नौजवान ने कहा कि हजरत माफ कीजिएगा, मेरे अंदर एक ऐसी आदत थी, एक ऐसी बुरी आदत थी कि मैंने आपसे छुपा कर रखा, जिंदगी में कभी आपको नहीं बतलाया, और वो बुरी आदत थी कि मैं मौत खाता था, मैं ड्रिंक करता था, मैं शराब पीता था, मैं ड्रग्स का यूज करता था। मेरे नौजवानों, मेरी इस बात को गौर से सुनो और अल्लाह के वास्ते सुनकर जाओ, अमल की नीयत से सुनो, अमल करने की कोशिश। आप नहीं खाते हैं, आप मौत इस्तेमाल नहीं करते हैं, ड्रिंक की आदत आपकी नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दोस्त इस बुरे काम में लिप्त है, ये पाप और गुनाह के काम में अगर वो मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते जाओ और जाकर उसको ये घटना सुनाओ। उस नौजवान ने कहा कि हजरत, जब आप मुझे कलमे की तलकीन कर रहे थे, आप कलमा पढ़ रहे थे, मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था, मेरा होश उस वक्त बाकी था, मैं भी कलमा पढ़ने की कोशिश करता था, मैं जबान से कलमा पढ़ना चाहता था, लेकिन वहीं मेरी चारपाई, मेरे पलंग के करीब में एक आदमी बैठा हुआ था।
अनजान आदमी, जिंदगी में मैंने कभी उसको नहीं देखा, कोई चीन परिचय नहीं, शायद वो कोई जिन था, शायद वो कोई शैतान था, वहां आकर बैठा था। जब मैं कलमा पढ़ना चाहता था तो जोर से वो मेरे मुंह पर हाथ रख देता था, मेरे मुंह को बंद कर देता था और मुझे कलमा पढ़ने का चांस वो नहीं देता था। इसका मतलब यह हुआ कि जो आदमी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर वो मौत खाता है, अगर वो ड्रिंक करता है, अगर वो शराब पीता है, हदीस में उस पर जो वईद है, उसका जो गुनाह है वो अपनी जगह पर, और इसके साथ साथ बुजुर्गों का ये तजर्बा कि शराब पीने वाले को, मौत खाने वाले को, मदारी को, नशेड़ी को मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होता है। सब बोलिए औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, सब बोलिए आमीन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ईमान असल में वही है जिसको बचाकर हम अल्लाह के पास लेकर जाएं। कैसे ईमान बचेगा, मैंने एक बात आप लोगों के सामने बयान की। उसी ईमान को बचाने के लिए, उसी ईमान की हिफाजत के लिए हमारा भी ईमान बचे, हमारे बच्चों के ईमान की भी हिफाजत हो, हमारी लड़कियां, हमारी मैं जो हमारी बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी इज्जत है, उसके ईमान की भी हिफाजत हो। इसीलिए मसाजिद के अंदर मकतब का सिस्टम हमारे बुजुर्गों ने कायम किया। हर मस्जिद में मकतब का निजाम। अल्लाह के वास्ते इसको मजबूत करो, इसको मजबूत करो। वो बच्ची जब मकतब में आएगी, दुआ याद करेगी, कलमा याद करेगी, नमाज का तरीका सीख कर जाएगी, पाकी नापाकी का मसला सीख कर जाएगी, ईमान की अहमियत को सीख कर जाएगी। अल्लाह करम करेगा, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी उनके ईमान की हिफाजत होगी। मदरसे इसीलिए बनाए जाते हैं कि मदरसों में पढ़ेंगे। और आजकल एक बहुत से लोग इश्काल करते हैं कि मदरसे में खाली कुरान हदीस ये वो मसला ये सब पढ़ाया जाता है, कुछ जनरल एजुकेशन भी, जनरल शिक्षा भी होना चाहिए। तो आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने पास कर दिया है, आसाम गवर्नमेंट ने पास कर दिया है कि चाहे वो स्कूल हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट का स्कूल हो, चाहे वो मदरसा प्राइवेट मदरसा हो, प्राइवेट मदरसा में भी जनरल शिक्षा एक बारे कंपलसरी, जनरल शिक्षा देना ही पड़ेगा। तो बनात में भी और लड़कों के मदरसे में भी जरूरत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़ों ने ये सिस्टम चालू कर दिया है। और कम से कम आसामीज और सोशल और गणित और उसके साथ इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट मदरसों में भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो मदरसे होते हैं, मदरसे किस लिए होते हैं? ईमान की हिफाजत के लिए होते हैं, ईमान की हिफाजत के लिए होते हैं। लेकिन याद रखिए, मदरसों के सिलसिले में हमारी आपकी जहां पर मदरसा है, वहां के लोगों की, वहां के मर्दों की, वहां के औरतों की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है, ये आप लोगों को मुझे बताना है, आप लोगों से मुझे ये बात कहनी है। तो इसी सिलसिले में मैंने एक हदीस पढ़ी, इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, मैंने ये हदीस पढ़ी। भाई कुछ होगा वो लोग कर लेंगे अपना, आप हजरात बैठिए। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत बहुत लंबी है, समय नहीं है कि मैं वो लंबी रिवायत बयान करूं। खुलासा ये है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा हदीसों को याद रखने वाले और उम्मत के सामने पेश करने वाले, अगर ये कहा जाए कि सहाबाए किराम में सबसे बड़े मुहद्दिस और सबसे बड़े शेखुल हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने बयान किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे।